Hello students, I am your teacher Rakesh sir welcomes you in my channel The School of Science. So students, in this video we are going to find factors of a quadratic equation with the help of a simple activity, right? Students, first we need to understand what is a factor. A factor, we can say a number is a factor of other number in case if this number divides the other number completely and the remainder becomes zero. अगर कोई नंबर दूसरे नंबर को completely divide कर देता है और आपका रिमाइंडर उस केस में जीरो आता है, in that case you can say that this number is the factor of that number. Okay, तभी आप कह सकते हो. For example अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, in case of prime factorization of 10, we have 2 and 5 as factors. So 2 and 5 can easily divide the 10. 2 and 5 10 को divide कर सकते हैं and they are the factor of 10, right? They can easily divide the 10 and they are the factors of 10 also, right? So here we have a quadratic equation. Quadratic equation is always in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. This is the general form of our quadratic equation, which is like this. We need to split this quadratic equation in order to find the factors of this quadratic equation, right? First we need to multiply the coefficient and constant, that is 3 multiplied with 2, 3 multiplied with 2. When we multiply coefficient and constant we get 6. After factorizing this 6, we have 2 and 3 as factor, right? 2 and 3 as factor. Now according to midterm splitting method, with the help of this 2 and 3 we need to find the midterm. So 2 plus 3 is 5x. Okay, now 3x square plus 3x square plus 3x plus 2x plus 2. Okay, 3x plus 2x 5x हमारा मिड टर्म आ गया. दोनों को ऐड करने के बाद 3x plus 2x एंड मल्टीप्लाई करने के बाद 3 2 जा 6 अगेन 6, राइट? नाउ टेकिंग कॉमन फ्रॉम बोथ द टर्म, 3x यहां से कॉमन निकल जाएगा बेटा, द वैल्यू इज x plus 1. 2 यहां से कॉमन निकल जाएगा, द वैल्यू इज x plus 1. One of the factor is 3x plus 2 and other factor is x plus 1. These are the two factors. 3x plus 2 and x plus 1. We need to find these two factors with the help of activity, not from this midterm splitting method. अब हम जो फैक्टर निकालेंगे एक्टिविटी से निकालेंगे, यही फैक्टर निकालेंगे, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, राइट? सो फॉर दिस एक्टिविटी आई हैव थ्री स्क्वायर्स. These three squares having same dimension x and x, right? X and x, three squares with same dimension. Okay, all three squares have same dimension, right? I have five rectangles, and these 5 rectangles having the length x but the breadth is 1 centimeter. The length is x but the breadth is 1 centimeter. Total 5 rectangles I have, right? And two small squares I have with 1 centimeter cross sectional area, 1 cross 1 centimeter. Now I need to paste these figures into a paper. So student, finally I pasted all the figures in a plain cardboard. Here we have 3 squares with dimension x as the length. 1 2 3 4 5. 5 rectangles with dimension x as the length and 1 as the breadth, and 2 squares here red colored, 1 square centimeter area, right? So why I take these 3 square of x dimensional area and these 5 rectangles and these 2 small cubes
right? The reason behind this is, student, in the equation we have 3x square, 3x square, हमारे पास इक्वेशन में है 3x square. You know that एक स्क्वायर का जब हम एरिया निकालते हैं, अगर मैंने इसकी एक डायमेंशन x ली तो दूसरी भी x होगी. एंड इफ आई वांट टू कैलकुलेट द एरिया, तो एरिया क्या आ जाएगा बेटा, साइड का स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर आएगा. यस, अगर मैंने एक स्क्वायर कंसिडर किया जिसकी डायमेंशन मेरी x है, अगर एक साइड x होगी तो दूसरी भी स्क्वायर की x होगी, राइट, और इसका एरिया x स्क्वायर आ जाएगा, एरिया x स्क्वायर. इफ आई हैज 3 स्क्वायर्स, अगर मेरे पास 3 स्क्वायर होंगे, देन द एरिया मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर, व्हिच इज द फर्स्ट टर्म ऑफ आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट. 3x स्क्वायर हमने कैलकुलेट कर लिया. नेक्स्ट है हमारे पास बेटा 5x. इसके लिए हमने क्या किया, हमने 1 यूनिट ब्रेथ एंड x यूनिट लेंथ, 1 यूनिट ब्रेथ एंड x यूनिट लेंथ, जितनी लेंथ हमारे इस क्यूब की है बिल्कुल एग्जैक्ट उतनी लेंथ ली, x यूनिट लेंथ एंड 1 यूनिट ब्रेथ. द एरिया इज नाउ length into breadth, that is 1 into x, value is x centimeter square. And when I take 5 rectangles लूंगा, तो then my area becomes 5x centimeter square, 5x centimeter square. अगर मैं इस रेक्टेंगल को लेता हूं 5 टाइम्स, राइट, तो वैल्यू सेकंड 5x, राइट. एंड 2 इज द यूनिट वैल्यू, राइट. तो हमने क्या किया, उसके लिए छोटा सा जो हमारा स्क्वायर है 1 सेंटीमीटर, इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एरिया 1 into 1 दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और छोटे छोटे 2 अगर हम स्क्वायर ले लें तो हमारा एरिया हो जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो उसके लिए हमने 2 वैल्यू, राइट. इसलिए हमने 3 स्क्वायर सिलेक्ट किए जिनका डायमेंशनल एरिया निकाला x 3x स्क्वायर. हमने 5 रेक्टेंगल सिलेक्ट किए जिसका x ब्रेथ था, जिसका x लेंथ था और 1 ब्रेथ था, मल्टीप्लाई करके x और हमारा आ गया एरिया, और 5 मल्टीप्लाई किया बिकॉज हमने 5 लिए थे तो 5x हमारा आ गया एरिया, विच इज द सेकंड टर्म ऑफ आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एंड द लास्ट टर्म 2, तो इसके लिए हमने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के 2 छोटे यूनिट स्क्वायर ले लिए, राइट. तो जिससे हमारी ये कंप्लीट फिगर बनी है. 3 स्क्वायर्स, 1 and 2, 3, 4, 5 येलो कलर्ड रेक्टेंगल एंड दीज 2 रेड कलर्ड यूनिट स्क्वायर्स, राइट. तो ये हमने सिलेक्ट कर लिए हैं. अब बेटा ये आप ध्यान से देखो तो ये एक बड़ा क्या बन गया है, एक बड़ा रेक्टेंगल बन गया है. दिस इज अ बिग रेक्टेंगल वी हैव, दिस इज द बिग रेक्टेंगल वी हैव, राइट. अब मैं अगर इस रेक्टेंगल का कैलकुलेट करूंगा लेंथ, तो स्टूडेंट्स here my length is x, here my length is x, here my length is also x, और यहां पे जो 2 रेक्टेंगल है हमारे, इनकी जो ब्रेथ है वो यूनिट है, मींस 1 and 1 यानी 2. तो x plus x plus x plus 2 मींस 3x plus 2. This is the 3x plus 2, this is the length of rectangle. 3x plus 2 is the length of rectangle. X plus x plus x and 2 rectangles, that is 1 plus 1. So 3x plus 2 is the length. And in case of breadth, student, अब इसकी breadth की वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे हम, तो breadth हमारी कितनी है, यहां से यहां तक की वैल्यू तो हमारी x थी, x में हमने 1 सेंटीमीटर ऐड किया जो कि रेक्टेंगल की ब्रेथ है, स्क्वायर की तो हमारी डायमेंशन x है और उसमें हमने 1 सेंटीमीटर ऐड कर दिया, तो ब्रेथ की वैल्यू x प्लस 1, ब्रेथ की वैल्यू s प्लस 1. अगर इस हम पूरे के पूरे बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे तो इसकी जो ब्रेथ हो गई वो x प्लस 1, इसका जो लेंथ हो गया वो 3x प्लस 2, मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया हमारा कितना आ जाएगा बेटा. नाउ आवर एरिया इज 3x प्लस 2 एंड x प्लस 1, 3x प्लस 2 and x plus 1, which is the factor, right. तो फैक्टर कैलकुलेट हमने कैसे किए आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही इजी मेथड था.
सबसे पहले हमने 3 हमारे स्क्वायर सिलेक्ट किए जिनकी x डायमेंशन रही, हमने 5 रेक्टेंगल सिलेक्ट किए जिनकी डायमेंशन 1 सेंटीमीटर ब्रेथ एंड x सेंटीमीटर लेंथ रही, और यूनिट सेंटीमीटर के 2 स्क्वायर सिलेक्ट किए, राइट। इन सब को ज्वाइन करके हमने एक फिगर बनाई, और इस फिगर में हमने, क्योंकि क्यूब की लेंथ x थी, x प्लस x तीनों को ऐड किया, और इसमें हमारे रेक्टेंगल की ब्रेथ 1 एंड 1 सेंटीमीटर थी, ऐड करके 3x प्लस 2 टोटल लेंथ आ गई हमारे रेक्टेंगल की, जो बड़ा वाला रेक्टेंगल बन गया। और यहां से ब्रेथ निकाली तो ये x हमारे इसकी लेंथ हो गई स्क्वायर की, और इसके ऊपर जो लेंथ ऐड हुई है, न्यू लेंथ ऐड हुई है 1 सेंटीमीटर, उसको ऐड किया तो कंप्लीट जो ब्रेथ हो गई हमारी वो x प्लस 1 हो गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया मिलेगा, एरिया इज इक्वल टू x प्लस 1 मल्टीप्लाई 3x प्लस 2, तो x प्लस 1 मल्टीप्लाई 3x प्लस 2 इज द फैक्टर। ये दोनों फैक्टर, और हमने मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज नहीं किया है, हमने क्या यूज किया है, हमने यहाँ पे स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स को एज अ फिगर ज्वाइन किया है, और वहां से हमें 2 फैक्टर्स मिले हैं लेंथ एंड ब्रेथ की फॉर्म में, लेंथ एंड ब्रेथ की फॉर्म में। सेम फैक्टर हमारे मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट स्टूडेंट। आई थिंक यू क्लियरली गॉट दिस algebraic expression और quadratic expression का splitting method as well as activity demonstration. So guys, like and comment in the video, share it with your friends, subscribe the video and hit the bell icon for connected with us for the further new updated video. Guys, Jai Hind, Jai Bharat.